Welcome you all in this session. Beta, in this session we are going to study English subject. Okay. Yes, sir. Today, sir. today, Yeah. today we are going to start a fresh session, fresh section, Yes, sir. chapter number 6. That is a vocabulary section. So let me open the book first. So, beta, it is what we have to study today. Acha, before moving ahead, सर बुक before ठीक से moving on नहीं the दिख lab रही है। section, I want to confirm that whether you all have completed these exercises, whether you all have written the answer of these questions into your notebook or not. If anybody are having any issue, beta, if anybody are having any issue, any query regarding this question, they can ask. Before yesterday, I discussed these questions. सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए थे. Yes, sir. Yes. महक, Yes, sir. महक, I think you were absent on that day actually. Yes, sir. Absent थी ना? Yes, sir. क्यों महक? Yes, sir. हाँ, you were absent. Actually, sir. you have to watch the recorded video. अंश पांडे आप थे ना? Yes, sir. सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन प्रॉपर्ली डिस्कस किया गया है. बेटा आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगी तो उसमें आपका प्रॉपर्ली आपको समझाया भी गया है. एंड इवन आल्सो आई हैव देयर इज सम सजेस्टेड आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. अगर कोई आपको समझ में नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम रहती है, यू कैन आस्क ड्यूरिंग द नेक्स्ट लाइव क्लास, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा. ओके. Yes, sir. मैं Yes, sir. प्रिया, अंश पांडे, कोई भी आप मुझे डायरेक्टली ग्रुप में ना करके आप डायरेक्टली यू कैन व्हाट्सएप मी. तो अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो दे कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप. Yes, sir. हाउ वी हैव रिटन द आंसर ऑफ दीस क्वेश्चन. ठीक है. जिनके भी थोड़ी बहुत बच्चे हैं या ना समझ में आ रहे हो तो जरूर पूछ लीजिएगा. दीपिका आल्सो यू वुड नॉट एट द टाइम ऑफ लाइव क्लास. बेटा वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ डे बिफोर यस्टरडे बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन. पूरा एक उस दिन का पूरा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने में चला गया था. ऐसा ही तो था क्यों अरुण? आप तो थे. Yes, sir. तो मैं एक दिन और इस पे नहीं देना चाह रहा हूँ. आप एक बार देखिएगा वीडियो. अगर आपको नहीं समझ में आएगा देन आई विल एक्सप्लेन. So moving ahead, that is a vocabulary. In vocabulary junction, you will be learning some more words. आप कुछ words एक तरीके से आपकी word knowledge बढ़ेगी और किसी भी words में कुछ करके how we can use in a sentence. Also, we will be learning all those things. So first of all, we have to read some of the lines that has been taken from the poem. Deepika Verma, can you read these lines from the poem? Deepika. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May the poison purify your flesh of desire. I watched the flame feeding on my mother. Look Okay. at the highlighted Yes, words. only you were supposed to read the lines from the poem, not the next one. Okay. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. Sir. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May the poison purify your flash of desire. I was the flame feeding on my mother. इन सारी लाइनों को प्रॉपर्ली पोएम में मतलब समझाया गया था, एक्सप्लेन किया गया था. दीपिका वर्मा, you were not at that time. I think during the explanation of this chapter, you were not in the live class. So did you watch the recorded video of this? Yes, sir. Okay. So these lines already has been explained during the. सर आपकी आवाज कट रही है. मेरी आवाज फट रही है कैसा? मतलब are you not getting clearly? मैम. बेटा दीपिका, अरुण, अविरल, Yes, sir. are you getting my voice properly, बेटा? Yes, sir. Okay. Yes.
बेटा अंश Yes, पांडे, sir. अंश पांडे जब कभी आपको दिक्कत हो आवाज को लेकर के, तो वहां पे कुछ ना कुछ नेटवर्क इशू रहता है। मैंने मतलब शुरुआत सेशन के शुरू में ही बता दिया कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम 1 या 2 दिन रहेगी। तो ऐसे में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सा वेट किया करिए, यू डू नॉट नीड टू इंटरप्ट। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो वहां पे आप पूछ सकते हैं, 1 बार नहीं 2 बार पूछिएगा, 4 बार पूछिएगा। आवाज से नहीं मतलब है, समझने से मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए। बट आई होप Yes, sir. everybody were getting my voice properly and clearly. You Arun? Yes, Yes, sir. Okay. Yes, sir. बेटा what Yes, you need sir. to do, आपने जो भी दीपिका ने ये लाइंस पढ़ा पोएम के, आप सभी ऑलरेडी पोएम्स में पढ़ भी चुके हैं, इस पोएम में पढ़ भी चुके हैं। What we have to do, what we have to look, we have to look at the highlighted words. Highlight कौन कौन से words किए गए हैं? There is two highlighted, there is two types of highlighted words. The one is in the pink color and the second one is the in bold format. एक कुछ वर्ड जैसे लेट्स से कि in the first line two words have been highlighted. The first one parting जो कि आपका पिंक कलर से लिखा गया है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह हाईलाइट किया गया है। The second one is the with जो है बोल्ड फॉर्मेट में है। That means कि with is also has been highlighted. दो words highlighted है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, What is next? Next, burn away. Here again, burn and away both have been highlighted. लेकिन दो अलग अलग तरीके से हाईलाइट किया गया है। दो अलग अलग तरीके से हाईलाइट करने के पीछे भी रीजन है, अभी मैं उसको भी समझाऊंगा। In this line, purify has been highlighted with the pink color and off has been highlighted by the black color, you can say. Feeding को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है और on को भी हाईलाइट किया गया है in the last line. So what does it mean? ये हाईलाइट क्यों किया गया? Let us read ahead from your book. The word in pink are verbs. जो pink में है, the words that are in the pink color, वो क्या है? They all are verbs. Verbs समझते हैं सभी लोग? Are you all सर everybody? दोबारा रिपीट कर दीजिए। The words. सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। Okay. Let me check my phone whether it is connected to the internet or not. But I was telling that the words in pink are verbs. What the lines Deepika has read, that is from the poem. In the first line, in this line, and in the last line, there are some words that are in the pink color. वो pink color के जो words हैं, that are all verbs. आप समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Now let me know that कि how many are able to understand the verb. Verb क्या होता है? कितने लोग समझते हैं? Show me your hand. Verb क्या होता है? How many are getting? Actually, from your side. Yes, Deepika, no. Actually, now I got the picture of Deepika. Which Deepika, no. And how many else are getting? Verbs क्या है? Verb क्या है? कितने लोग समझते हैं? Verb को बताना पड़ेगा। अगर कोई भी कंफ्यूज हो तो बताइए। दीपिका, ओके बेटा, डाउन योर हैंड्स। अंश पांडे, अविरल, महक, प्रिया। वर्ब्स दैट आर द एक्शन वर्ड्स। बेटा थोड़ा सा आप दिख रहे हैं। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स जहां पे भी अगर आपको एक्शन दिखेगा, एक्शन मतलब कोई ना कोई कार्य होते हुए दिखेगा। अभी देखते हैं। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, इसका मतलब मैंने क्या समझाया था पोएम में? पार्टिंग क्या मतलब? पार्टिंग विथ हिज पॉइजन। पार्टिंग वर्ड हैज बीन यूज्ड एज अ वर्ब। ऐसा क्या काम हो रहा था इन दिस सेंटेंस? पार्टिंग विथ हिज पॉइजन। महक बताइए, माइक ऑन करके बताओ। सर पार्टिंग मतलब छोड़ते हुए या कोई कार्य करना, यानी पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अपने जहर को छोड़ते हुए या Yes, sir. डंक मारने के बाद। दैट मीन्स कि जब जहर कब छोड़ा जाता है? जब डंक को मार दिया था स्कॉर्पियन ने, दैट इज उसके बाद ही तो। जब डंक मार दिया तो यानी जहर उसकी जो पोएट है उसकी माँ के बॉडी के अंदर चला गया, और फिर उसको जब वो पॉइजन जब
फिर वो पॉइजन जो क्या हुआ, पॉइजन उसने जो पोएट की मदर के बॉडी में डाल दिया, यानी छोड़ दिया, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, पार्टिंग इज एन एक्शन वर्ड्स। if we look in the last sentence, feeding on my mother, I was the flame feeding on my mother, ये feeding on my mother, या let's say in the second line, may the poison purify your flash of desire, ये किसी मतलब वहां के लोग कह रहे थे ना, may the poison purify your flash of desire, इसका मतलब क्या था, प्यूरिफाई। यहाँ पे इसमें एक्शन क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे कुछ कह रहा है, मतलब एक तरीके से सांत्वना दे रहे थे लोग, क्या कह रहे थे, may the poison purify your flash of desire, इसमें एक्शन क्या हो रहा है या क्या कह रहे थे, पहले यही बताइए, फिर उसके बाद एक्शन की बात करें। दीपिका, वो कह रहे थे कि ये जो जहर है तुम्हारी इच्छाओं को शुद्ध करेगा। ओके, अंश पांडे, व्हाट डू यू वांट टू से बेटा? यस सर। व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे, बताइए। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर, व्हाट डज इट मीन? सर जो बिच्छू मारा था तो इसका बर्थ बहुत अच्छे से होगा। मे द पॉइजन, जो पॉइजन है, इट विल प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर, जो आपकी इच्छाएं हैं उसको और प्यूरिफाई करेगा, यानी प्यूरिफाई करने का काम हो रहा है, तो दैट इज एक्शन। जो इच्छाएं हैं, अब जो इच्छाएं हैं उसमें तो कोई काम हो नहीं रहा है, अब वो जो फ्लैश ऑफ डिजायर है, जो मेड द पॉइजन, यानी ये जो पॉइजन है, पॉइजन तो एक तरीके से नाउन है ना, किसी चीज का नाम है ना। यस सर। ये जो पॉइजन है, यानी किसी जो कोई चीज है उसका नाम लिया जा रहा है, इट विल प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर, ये किसको आप प्यूरिफाई करेगा, फ्लैश ऑफ डिजायर, फ्लैश ऑफ डिजायर यानी डिजायर को, डिजायर इज ऑल्सो नाउन एक तरीके से, तो डिजायर को ये प्यूरिफाई करेगा। अब डिजायर को प्यूरिफाई करेगा यानी उस पे काम करेगा, काम क्या होगा, प्यूरिफाई करने का काम होगा, तो प्यूरिफाई इज अ वर्ब, प्यूरिफाई इज एक्शन। समझ में आ रहा है एक्शन? यस सर। तो ठीक है, Yes, वर्ब को बहुत sir. ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है, यू ऑल आर स्टडीइंग इन क्लास 6, वर्ब को अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो द वर्ड्स इन पिंक आर Yes, वर्ब्स, sir. द वर्ड्स इन पिंक आर वर्ब्स, जो आपने अभी यहाँ पे पोएम पढ़े, इसमें जितने भी वर्ड्स पिंक कलर में है, all the words are in verbs, and the words in bold are preposition, और जो वर्ड्स आपका बोल्ड में है, यानी विथ, अवे, ऑफ, ऑन, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं समझते हैं? व्हाट आर प्रीपोजिशन, हु कैन टेल? जस्ट हु कैन टेल? मैं को दीपिका के अलावा भी कोई बता सकता है? चलिए दीपिका बताइए। Preposition is a word which join to sentence or रॉन्ग है, word. रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। महक, A preposition is a word placed before noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun. बेटा दीपिका, बहुत सिंपल सेंटेंस में मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, जो आप, दीपिका सबसे पहले आप सुनिए, जो आपने बोला दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उसको कंजक्शंस बोलते हैं। तो कंजक्शंस को मेमोराइज करने का सबसे आसान तरीका है, रेलवे जंक्शन सुनते हो, मनकापुर जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, तो जंक्शन में क्या होता है, दो अलग स्टेशन को जुड़ते हैं ना, पता लगा फैजाबाद जाना है, मुंबई जाना है, अगर आपको कटरा जाना है, अयोध्या जो अपने आपके पास में बिल्कुल अयोध्या जंक्शन है, आपके कटरा तो जंक्शन नहीं है ना, कटरा से सिर्फ अयोध्या ही जाएगा कि और भी कोई सिटी, और भी कोई स्टेशन जुड़ता है, तो दो अलग अलग रूट के या दो अलग अलग रूट के स्टेशन को आपस में जो जोड़ रहे, जो इस जगह पे जुड़े, दैट इज ए जंक्शन। तो इसी तरह दो सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंस जहां पे जुड़े, उसी को मान लीजिए कंजक्शन, ये मेमोराइज करने का एक प्रॉपर वे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो कंजक्शंस को प्रीपोजिशन कभी नहीं भूलिएगा। दूसरी चीज प्रीपोजिशन क्या है, आसान शब्दों में समझिए, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन में प्री हटा दो, क्या है, पोजीशन आया। Yes, sir. अब पोजीशन क्या होता है, पोजीशन मीन सभी लोग को पता होगा क्या होता है, Yes, sir. मुद्रा, अवस्था, स्थान, मुद्रा या अवस्था। अभी लेट्स से कि इफ आई एम अ पेंसिल, इफ राइट नाउ आई एम हैविंग अ पेंसिल,
वो कहाँ पे है, टेबल पे है। लेट्स से कि आपके अगल बगल में सामान है, आप कहाँ बैठे हो, मतलब किस पे, ऑन द चेयर या फिर ऑन द बेड, कुछ भी हो सकता है। अब कहाँ पे है, इन द रूम, रूम के अंदर, यानी वो किसी भी पर्टिकुलर नाउन की जो आपने बोला, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के का पोजीशन बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है, वो प्रीपोजिशन वर्ड्स कहलाता है। पोजीशन यानी उसकी अवस्था बताता है कि वो किस स्थिति में है, अंदर है या बाहर है, या ऊपर है या नीचे है, या क्या है, या चारों तरफ है। तो सिर्फ इन सिंपल वर्ड्स में आप पहचानने की कोशिश कर लीजिएगा, बट कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, बहुत ज्यादा आप इंग्लिश में डेफिनेशन रट्टा मारे फिर आप बताएं तो इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग को समझ में आना चाहिए, आप लोग वर्ड्स को पहचानते हो कि हाँ ये कौन से प्रीपोजिशंस हैं, कौन से वर्ब हैं, बस इतना काफी है। ओके, Yes, Yes, sir. sir. नाउ द वर्ड्स इन Yes, बोल्ड आर sir. प्रीपोजिशन। अब जो ये बोल्ड फॉर्मेट में है वो क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस आप जरा देखते हैं कौन सा पोजीशन बताया जाता है, कौन सा पोजीशन शो कर रहे हैं। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, ये विथ आपका हमेशा प्रीपोजिशन वर्ड्स होता है। विथ मतलब एक तरीके से होता है साथ, ठीक है। यू हैव टू कम विथ योर बुक, यू हैव टू कम विथ योर पेरेंट्स, यानी साथ वर्ड आप लोग अमूमन बोलते समय ऑफन बी यूज विथ वर्ड्स ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस ना। इन द सेम वे लेट्स से कि if you are telling, let's say कि feeding on my mother, I was the flame feeding on my mother, on का यूज आप अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करते हैं कि I'm sitting on the bench या there is a book on the table। तो अभी आपके इस सेक्शन में आपको क्या सीखना है, जो प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं और जो आपके वर्ब वर्ड हैं, उन दोनों को जब मिला करके वर्ब वर्ड क्या है ये समझा दिया गया, प्रीपोजिशन वर्ड्स क्या है वो समझा दिया गया। ये दोनों वर्ड्स एक साथ मिलकर के क्या काम करते हैं, लेट अस रीड द वर्ब्स इन मोस्ट केसेस। फिर से एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द वर्ड्स इन पिंक आर वर्ब्स, जो वर्ड्स पिंक कलर में है वो वर्ब्स कहलाते हैं। एंड द वर्ड्स इन बोल्ड आर प्रीपोजिशन, जो बोल्ड फॉर्मेट में है दैट ऑल आर प्रीपोजिशन। इतना समझ में आ गया। Yes, sir. These verbs in most cases, these sir. verbs in most cases are accompanied by these preposition। इस तरह के जो verbs होते हैं कई बार, मतलब in most cases, लगभग 100% नहीं लेकिन 95% accompanied by these prepositions इन prepositions के साथ में आते हैं। Actually they are verb preposition collocation, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, they are a verb preposition collocation। Certain verbs are followed by specific preposition, we say that these verbs collocate with these preposition। जब कई सारे verbs आपका पर्टिकुलर preposition के साथ आते हैं या किसी भी पर्टिकुलर preposition के, मतलब कुछ verbs ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में आपका कुछ preposition words यूज किए जाते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं कि जो verb है the verb is collocate with the preposition। जो verb है वो preposition के साथ collocate कर रहा है। समझ में आया। Yes, sir. Now Yes, let's have some example, कुछ examples पढ़ेंगे तब आप लोग को और भी समझ में आएगा। Let's say there is a word adapt to, adapt to। अब adapt is a adapt means क्या होता है, किसी चीज को अडॉप्ट करना कहते हैं ना। अब अडॉप्ट के बाद टू इज अ प्रीपोजिशन वर्ड। Yes, sir. अडॉप्ट, जब अडॉप्ट का वर्ब जो है उस टू प्रीपोजिशन के साथ जब एक साथ मिक्स, मतलब जब कोलोकेट करेगा यानी एक साथ यूज करेंगे, देन हाउ वी कैन यूज इन द सेंटेंसेस। वाइल्ड लाइफ sanctuaries are suitable for animals as they find it difficult to adapt to the confinements of a zoo। In the same way, adhere to, students must adhere to the rules and regulation of the school। student must adhere to एक तरीके से उनको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके बाद आपको प्रीपोजिशन वर्ड्स आपको यूज ही करने पड़ते हैं टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल एंड टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, अब जब ये कोई भी Yes, sir. वर्ब जब आपका प्रीपोजिशन के साथ जब आप यूज किए जाएं ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए, तो वो हम ये कहेंगे कि जो वर्ब है दैट इज कोलोकेट विद द प्रीपोजिशन वर्ड। Now, most people are not aware of the negative effect of overeating।
कई सारे लोग को ये नहीं पता होता है जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, जो उसके नकारात्मक इफेक्ट है, ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खाने के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं पता। गांव में तो लोग कहते हैं बहुत खा लो, जितना खाओगे उतना ताकतवर। हम लोग के यहाँ पे तो लगभग ऐसा ही मानना है ना। बेटा एक रोटी और, यस चार सर। रोटी और। यस सर। मुझे लगता है कि बच्चे को हम मतलब बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खाना मत खाइए, खाना कभी भी नुकसान नहीं करता। आप खाइए, आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आप खाइए, लेकिन उसी हिसाब से आप मेहनत भी करिए। ऑल्सो यू नीड टू हार्ड वर्क। जो आप खाए हो वो आपका सूप के रूप में बाहर निकलना चाहिए, पसीने के रूप में। लेकिन अगर आप बैठने कुछ करने वाले नहीं है तो खाने के भी अधिकारी नहीं है, तब वो नुकसान करेगा। तो बेटा there are many examples that where the verbs are collocated with the preposition word, and there are some sentences there are some sentences where these words have been used. So you all need to read all the sentence and all the verb that collocate with the preposition very carefully. उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को भी जब एक बार हम इसको पढ़ लेंगे, एग्जांपल्स पूरा ध्यान से देखेंगे, देन आल्सो वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि व्हिच वर्ब प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन, इसमें कौन सा वर्ब प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, वो कौन सा रॉन्ग है। अब किस वर्ब के, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन वर्ड यूज कर लें। तो कुछ वर्ब्स हैं उनके साथ कौन से प्रीपोजिशन वर्ड्स यूज होंगे, इसका कोई रूल नहीं है। जस्ट यू ऑल हैव टू रीड एंड मेमोराइज द थिंग्स। और आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होंगे, पढ़ेंगे, धीमे धीमे आपको आता हुआ चला जाएगा। देयर इज नो एनी स्पेसिफिक रूल। अगर स्पेसिफिक रूल है तो कंफ्यूजिंग है, तो आपके लिए दिक्कत करेगा इस लेवल पे अभी बताने में। ओके, तो एवरीबॉडी हैव टू रीड वन बाय वन। नाउ ब्लेम, ब्लेम में जानते हो जब किसी को ब्लेम आप कर देते हो। अब ब्लेम को फॉर के साथ भी यूज किया जा सकता है, ऑन भी यूज किया जा सकता है। तो देयर इज एन एग्जांपल वेयर ब्लेम हैज बीन यूज्ड विद ऑन प्रीपोजिशन। ब्लेम में क्या होता है जानते हो ना, दोषी देना, ब्लेम करना। मुझे समझ में आ रहा है ब्लेम वर्ड? ब्लेम फॉर या ब्लेम ऑन, यस तो सर। इसका सेंटेंस में कैसे यूज किया गया जरा पढ़िए। सर आपकी आवाज बहुत फास्ट आ रही है। बहुत फास्ट आ रही है, कभी स्लो जा रही है, कभी फास्ट आ रही है। बेटा हु इज गेटिंग माय वॉइस प्रॉपर्ली? प्रिया एक बार आप पढ़िए। Yes, sir. The क्या कर रहे हैं सर? आपकी आवाज same फास्ट आ रही है। for running the paper show. क्या पढ़े हो बेटा, कहाँ पे आप? फिर से ये ब्लेम ऑन आप देख रही हो ना प्रिया? ब्लेम के साथ फॉर Yes, या sir. ऑन यूज किया जा सकता है। ब्लेम इज अ वर्ब जिसके साथ हम फॉर या ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब फॉर ब्लेम के साथ कभी भी आपको वर्ड अगर मतलब अगर ब्लेम वर्ब यूज करना है विद प्रीपोजिशन, देन यू कैन यूज दिस वन। देन देयर इज एन एग्जांपल वेयर blame has been used with the preposition। एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को पढ़ना है। तीशा blamed, पढ़िए प्रिया। Tisha blame Kishore for running कश्यप, the paper show. ये ध्यान से पढ़िए मैडम, पे ध्यान से पढ़िए। अभी स्पेलिंग आपको पढ़ाऊंगा नहीं तो फिर ये क्या लिखा है, एक बार जब मैंने बोला उसको आप फिर भी नहीं बोल रही हो। Sir, Kashyap. कश्यप, ये क्या लिखा है? Tisha blame. क्या लिखा है? For. फॉर, ये क्या लिखा है? Sir, for फॉर के बाद running. रनिंग की स्पेलिंग क्या होती है जरा बताइए। Sir, RUNING. RUI है, NING नहीं होता। रनिंग की स्पेलिंग में भी आप गलत बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये रनिंग नहीं है। RUIN क्या होगा? Sir, raining. Sir, raining. रेनिंग है, RAI। रेन की स्पेलिंग नहीं पता, RAIN रेन होता है।
ये RUIN है, रियून। रे- रियून, रियून से इंग लास्ट में मेरे यू में जुड़ गया, रियूनिंग, रियूनिंग द। और इसको इसको आपने क्या पढ़ा, जरा इसको पढ़िए। सर सर प्रेपेट। रा कहाँ पे है जो आप रा Prepared. साउंड लेके आ रही हो? आर कहीं पे है जो आप रा साउंड बीच में निकाल रही हो? सर आपको ये एडजेक्टिव मतलब वर्ब एडजेक्टिव कोलोकेशन पढ़ाने का क्या मतलब बनता है? अंश पांडे जरा आप पढ़िए, क्या लिखा है ये? Repeat. बेटा अभी प्रो, ये प्रो मतलब रा कहाँ पे है? आर कहीं लिखा है जो रा साउंड आप निकाल रहे हैं मुंह से? जो लिखा है जो साउंड से, आप इसको कभी साउंड्स आपने सीखा है? पी का पा, यू से आ, टी से टा, तो लास्ट में टा आएगा या शुरू पा से शुरू होगा। लेकिन अब ये बीच में क्या है? पी यू पी क्या होगा? पी यू पी क्या होगा? दीपिका आप एक बार पढ़िए बेटा। दीपिका व्हाट इज दिस? वीडियो ऑन करिए, बहुत आंखें मल चुकी है। Tisha blamed Kashyap for ruining the puppet show. पपेट, अब इसको शो देखने के बाद पपेट तो वैसे आपको ध्यान आ जाना चाहिए, सुने बहुत होंगे, कई बार देखे भी होंगे। PUP पप, अगर आप इसको थ्री लेटर्स में देखें, PUP पप, पब, बहुत सारी चीजें हैं। BUT बट, साउंड्स तो अभी सीखिए, रीड नहीं कर पा रहे। PET पेट, पप और पेट से जब मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे तो पपेट हो जाएगा। इट्स अ पपेट, पपेट शो। तीशा ब्लेम्ड कश्यप फॉर ruining द पपेट शो। तीशा ने कश्यप को ब्लेम किया फॉर ruining द पपेट शो। किसके लिए? जो पपेट शो था उसको खराब करने के लिए, ruin करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल फॉर द वर्ड कमिटेड टू। अब इसमें आपका कमिट जानते हैं? कमिटेड मतलब आई एम कमिटेड टू डू दिस वन। अब कमिटेड के साथ हमेशा टू यूज किया जाता है। एंड हाउ वी कैन यूज, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल। एक बार इसको पढ़िए बेटा, एक बार आप ही पढ़िए। अरुण Yes, sir. पढ़िए, रीड दिस वन। Our NGO is committed to improving the living conditions of the villagers. आवर एनजीओ इज कमिटेड, मतलब यह बिल्कुल ही कह सकते हैं कमिटेड की हिंदी, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक तरीके से आप लोग क्या, यू ऑल आर कमिटेड टू रीड, यू आर यू बी राइट नाउ आई एम कमिटेड टू टीच यू ऑल। मैं इस समय आप सभी को कमिटेड हूँ, डेडिकेटेड हूँ, मतलब एक तरीके से आप ये समझिए। तो कमिटेड मतलब उसी तरीके से दृढ़ निश्चय कर लेना, यानी मतलब उसे दृढ़ता पूर्वक बिल्कुल कमिटेड हैं, बिल्कुल रेडी हैं, वो करेंगे। तो इन द सेम वे committed word has been used, but committed should be used with the preposition word to. Our NGO is committed to, अब किस चीज के लिए committed है? To improving the living conditions of the villagers। जो living conditions villagers की है, जो गांव के लोगों की जो living conditions है, रहने की अवस्थाएं हैं, उनको improve करने के लिए committed है। Okay? Now the next Yes, one is sir. combine with। अब combine को with भी यूज कर सकते हैं, against के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब कंबाइन में से एक तरीके से मिलाना। अब कंबाइन जब मिलाएंगे तो किसी के साथ मिलाएंगे या किसी के अगेंस्ट में आप मिला सकते हैं। तो कंबाइन को विद के साथ भी यूज किया जा सकता है, अगेंस्ट के साथ भी यूज किया जा सकता है। लेट अस रीड द एग्जांपल। अंश पांडे आप पढ़िए इसको। जल्दी से अंश पांडे, ओनली 2 minutes इज रिमेनिंग। Yes, sir. अभी आप पढ़िए, आपने कुछ भी नहीं किया आज, कुछ बताया भी नहीं। Sir, oxygen combined with hydrogen to form water under specific चलिए, आपकी साइंस के टीचर आपके पढ़ाएंगे ऑक्सीजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंस करता है, यानी मिक्स होता है, मिलता है, टू फॉर्म
वाटर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, क्या बनाने के लिए? वाटर बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए। ओके, वो भी जब आपको शायद फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जाए उसमें भी आपको बताया जाएगा बेटा। इन द सेम वे द लास्ट मिनट इज गोइंग टू बी, the last minute is running of this session. So now what you all need to do today, you all need to read these verbs, preposition con, you all have to read all these verbs where it has been used with the preposition words. Okay, ये सारे जो वर्ब preposition collocate जिसको Yes, बोलते sir. हैं, जो जितने भी वर्ब्स हैं इनको जब प्रीपोजिशन के साथ आप किस तरह की चीजों को कहने के लिए यूज कर सकते हैं, यू ऑल हैव टू रीड। एक बार नहीं पढ़ना है, कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार जब पढ़ेंगे देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ वी कैन यूज दिस वन। अब गेस मींस आपको समझ में आता होगा, या कंट्रीब्यूट मींस समझ में आता है। कंट्रीब्यूट मींस क्या होता है? कंट्रीब्यूट करना। आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो ना, मिला एक होता है ना, कभी कुछ पार्टी करनी होती है तो लोग कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर लेते हैं एक दूसरे से, तब कंट्रीब्यूट को कैसे यूज करोगे? द न्यू लॉ विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ, कंट्रीब्यूट मतलब एक तरीके से क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट। अब हिंट की बात करो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर हिंटिंग एट। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप हिंट किस पे कर रहे हो। इन द सेम वे फॉरगिव वर्ड, फॉरगिव मींस क्षमा करना, तो फॉरगिव को कैसे यूज कर सकते हो, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। बेटा आप सभी लोग सारे सेंटेंसेस को एक बार पढ़िएगा। इन द नेक्स्ट क्लास आई वुड बी टेलिंग यू Yes, समथिंग sir. मोर एंड आल्सो वी वुड बी सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा आप सभी को। आज आपका फर्स्ट डे था, थोड़ा सा आप लोग पढ़े रहे होंगे तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलेंगे।